A heartfelt morning to one and all present here. It is an honor in itself to extend a very warm welcome to the gracious gathering who have allocated time in their busy schedules to be present here and enhance the importance of the day. We extend a heartiest welcome to Honorable Patron Sir, Revered Shri Yogdhyan Ahuja Ji, whose presence here today fills us with boundless gratitude and honor. Sir has always been like that age-old tree, providing respite and shade to all under it. He has always stood firm as the pole star, showing us the right way on our voyage of taking the school to newer heights. We are deeply indebted for the unwavering support and generosity towards the institution. Your dedication, contribution towards the field of education is truly admirable, sir. We deeply thank you for gracing the program with your benign presence. I take great pleasure in welcoming our other dignitaries for the day. Head Primary School, Anand Vihar Branch, Mrs. Bindu Kalra Ji, and in charges of Anand Vihar Branch, Mrs. Shivani Narula Ji, Mrs. Aarti Nigam Ji, and Mrs. Praneet Kaur Sahani Ji. No endeavor is said to be complete without the benediction of the Almighty and without our soulful effort. And to make our dedicated effort more purposeful, we evoke the blessings of the Almighty by lighting the propitious lamp. So may I now request all of you all to rise up and the dignitaries to kindly step forward for the lamp lighting ceremony. Thank you to all the dignitaries for giving the program such an auspicious commencement. Every success story is a tale of constant adaptation, revision, and change. Vivekanand School too has voyaged for over 45 long years, still running head high and roots laid deep. In order to skillfully face the challenges of life, Vivekanand School has been sowing the seeds of readiness and mettle within all students to face any and everything in the long run. Our school song inspires all the Vivians to inculcate the best values of life, to move ahead in the right direction with positivity in heart and conviction in mind are our stalwarts that are clearly echoed in the lyrics of our school song, which will now be presented by our school choir. May I now request all to rise up as a mark of respect for the school song. Catching every moving trend.
so much, children, for such a tuneful embracement. Vivekanand School has been working tirelessly in different genres and preparing its children to face the bigger challenges of life. This temple of knowledge prepares them to excel in all fields, be it academic or co-curricular activities. This holistic development ensures expansive and sweeping success for the budding Vivians. Students here are provided with an exposure to a plethora of activities, skills, and knowledge which prove to be a vital tool to be successful in the advanced years of life. So let's take a sneak peek into the school's meritorious and well-structured functioning. Presenting to you the school video. With an ignition of spiritual fervor in our hearts. A foundation so meaningful and rewarding to create a timeless bond. Our school cherishes an instinct, reaps a trust, studies a mission, and nurtures a dream. A dream of deepening roots and broadening vision. The spirit of Vivian, a beautiful, intangible feeling that runs so bone deep. We learn to do and enjoy things done mindfully interspersed with fun, interesting twists and turns, amazing vistas, and ingenious connections. We grow in an atmosphere of incentivized learning and participation. Every year, our academic results and excellence makes us the proud Excelsiors. We see, we remember, we do, we understand. The labs are playground of simulation of ideas and knowledge, where we learn and engage, analyze and think. Our scientific skills, logical reasoning and aptitude resonate with energy and experimentation, wherein a taste and fervor of all intricacies involve a voluminous participation. We strive to focus our energies in an explorative way and get involved to pose questions, examine possibilities, and challenge ourselves to find solutions. Freedom of thinking. Freedom of working with perseverance and tenacity. We are encouraged in the culture of conversation and questioning. We redefine the educational paradigm from one that focuses on replication of information to a process that reflects the ability to think. We explore, experiment, and enhance our progressive lateral thinking. For us, Vivian Sports is a way of integrating body and mind, heart and soul. Varied sports provide us an opportunity to embrace the benefit of health and fitness, alongside developing our sporting spirit and displaying physical prowess. A wonderful learning experience is inclusive of sports activities which add all its finesse and rejuvenation in its masterful form. We play, we learn, we explore, we discover. Sports activities integrate agility and adaptability, trust and teamwork, a sense of disciplinary standards, and cherish the values of fair play and independent thinking. Our strength, agility, equilibrium, and balance find a manifestation in sports. Here, our abilities and talents are encouraged and enhanced. There are opportunities to excel in all spheres of life by exploring every facet of our personality. A plethora of activities synchronize our holistic growth, creativity, life skills, and happiness quotient, and joy that goes beyond classroom teaching.
The kaleidoscopic gallery of activities aim to explore every sphere of life, thereby making us discover our own selves and our inherent talent that lies within us. Keep moving forward in a dynamic way to cultivate our social and cultural skills aesthetically. Life here is reverberation and pulsating always. The vibrant and lovely journey has been truly a milestone, integrating a wholesome personality in a nurturing environment. We are taught to be confident, inquisitive, and independent minded. We are inspired by the visionary leaders for innovating change. We are the change makers and leaders of tomorrow. I've heard about your school, that it's a very, very good school. But seeing is believing. It's one of the very best schools in the region. We imbibe the spirit of internationalism. We believe in the ideology of Vasudhaiva Kutumbakam. We Vivians are the global citizens. We connect in the spirit of true compassion in our commitment towards the society. For us, changing mindsets means changing lives. We learn a lot to emphasize giving with dignity and valuing our resources by participating in community services for the underprivileged. And we take a bow and salute our mentors for inspiring us to be the Excelsiors, bequeathing the rich legacy for generations in the years that follow. We are proud Vivians. We will always enjoy the success of others. We will work with integrity and succeed with integrity, and we will work to bring glory to the nation. School video is indeed a true representation of the undaunted effort put in towards enriching the Vivians holistically. With our very respected patron Sir amongst us today, I would take the opportunity of welcoming Sir along with the other dignitaries on stage for the felicitation ceremony. May I request Headmistress Madam Mrs. Bindu Kalra ji to felicitate patron Sir with a planter as a mark of respect and gratitude. Thank you, sir. Thank you to all the dignitaries. Sri Ram, an incarnation of Lord Vishnu, who came down to the earth for the destruction of Ravan, stands to be the perfect figure who exemplifies the heights of perfection a human being can achieve. He is considered to be the preserver and upholder of dharma, the embodiment of virtuousness, and is often viewed as the supreme being rather than an avatar. His life, as told in the Ramayana, is something to idealize and forms a fountain of inspiration for all. The Ramayana, a Sanskrit epic, has always remained to be a part of each Indian child's memory of storytelling sessions with their parents or grandparents. A true example of the rich tapestry of Indian mythology, it stands to be an epic, adventure filled with trials, triumphs, and ultimate sacrifice, which clearly depicts the righteousness prevails and virtue triumphs over evil. It spells out the timeless message of courage, brotherhood, integrity, and fraternity. So let's move ahead and experience the beautiful spectacle to be presented through the Ram Stuti,
that depicts the moral and physical qualities of the Maryada Purushottam, Sri Ram, followed by an immersive experience with a compelling drama adaptation of the timeless classic Ramayana. So with a round of huge applause, please welcome our children for the first performance. Shri Ram, Shri Ram. हरण भव भयदारुण
पता है आज तो क्लास में बहुत मजा आया। मैंने ना अपना होमवर्क भी नहीं किया था, लेकिन मैम ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और मैंने भी आज बहुत सारी गेम्स खेली थी। गेम्स पीरियड, वाओ ना मजा आया। चलो चलो रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हाइशा गाइशा, वी ऑल फॉल डाउन। चलो चलो आज हम सब कुछ नया खेल खेलते हैं। हाँ, आज हम सब कुछ नया खेल खेलेंगे, मजा आएगा। पर हम कौन सा खेल खेलेंगे? क्या आज हम सब राजा रानी और मंत्री का खेल खेलें? अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं तो राजा बनूंगी, राजा के कपड़े पहनूंगी। तुम राजा क्यों बनोगे? मैं भी तो राजा बन सकती हूँ। तुम दोनों क्यों बनोगे? मैं राजा बनूंगा। नहीं, मुझे राजा बनना है। नहीं, मुझे बनना है। मुझे बनना है ना राजा। नहीं नहीं, मुझे बनना है। राजा तो मैं ही बनूंगा, वो भी राजा राम। राजा राम? हाँ। नहीं, मुझे राजा राम बनना है। मुझे बनना है। अरे रुको बच्चों, क्यों झगड़ा कर रहे हो? नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी जी, जीते रहो खुश रहो। अब ये बताओ झगड़ा क्यों कर रहे हो? दादी जी, हम राजा और रानी का खेल खेल रहे हैं। पर तुम लोग किस राजा के बारे में झगड़ा कर रहे हो? दादी जी, आजकल सब लोग राम राम बोल रहे हैं, शायद इसलिए ये राजा राम बनना चाहता है। वो तो ठीक है, पर क्या तुम सब राम जी के बारे में कुछ जानते भी हो? नहीं, हम तो रोज सबके मुंह से राम राम ही सुन रहे हैं। हाँ हाँ, सभी लोग राम राम बोल रहे हैं। तो आओ बच्चों, मैं तुम सबको राम जी के बारे में बताता हूँ। चलो चलो, चलो। दादाजी कहानी सुनाएंगे, मजा आएगा। दादाजी, पहले आप हमें राजा राम जी के घर यानी अयोध्या के बारे में कुछ बताइए ना। तो चलो, मैं तुम सबको अयोध्या का इतिहास बताता ही नहीं, दिखाता भी हूँ। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन और धार्मिक नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। माना जाता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जहां कभी युद्ध न हो। इसके अलावा इसे प्राचीन काल में कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी और रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या में ही जन्मे भगवान श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। वर्तमान अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य हैं। कुछ मंदिर 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बने थे, जिनमें कनक भवन, नागेश्वर नाथ तथा दर्शन सिंह मंदिर दर्शनीय हैं। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट अयोध्या में पूजा का प्रमुख स्थान है। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसीलिए अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते हैं और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए अयोध्या आएगा, उसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। यहाँ आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। लंका से विजय के प्रतीक के रूप में लाए गए निशान भी इसी मंदिर में रखे गए हैं, जो आज भी खास मौके पर ही बाहर निकाले जाते हैं।
और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में बनने वाले विशाल और भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। तो बच्चों, देखा आपने राम जी की अयोध्या के बारे में? तो मेरे साथ बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दादी, मुझे तो ये सब देखकर बहुत हैरानी हो रही है। हाँ, कैसे सबने राम जी को लाने के लिए अपना योगदान दिया। बेटा, श्री राम के चरित्र को निभाना इतना आसान नहीं है। दादाजी, आपने हमें अयोध्या नगरी के बारे में बहुत सी बातें बताई, पर मुझे अभी भी कुछ पूछना है। पूछो बेटा। तो रुक, मैं पूछती हूँ। दादाजी, मुझे भी राम जी के बारे में जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राम जी का जन्म कैसे हुआ और उनका बचपन कैसा था। बचपन में वो कैसे थे? हमारी तरह तो बिल्कुल नहीं होंगे चारवी। हाँ बेटा, श्री राम कथा में राम जी के जन्म का सुंदर विवरण है। तो दादी जी बताइए ना, बहुत उत्सुकता हो रही है जानने की। तो ठीक है, अब हम तुम्हें आगे की कहानी सुनाएंगे। सुनो जी, आप शुरू करो ना। अरे, राम जन्म की कहानी तो तुम ज्यादा अच्छी बता सकती हो। नहीं नहीं, आप सुनाइए ना। अरे मैं कह रहा हूँ तुम सुनाओ, ज्यादा अच्छी तरह सुना सकती हो। चलो हम दोनों मिलकर सुना लेंगे। अरे, अब आप लोग भी हमारी तरह लड़ने लग गए। नहीं नहीं बेटा, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोज तुम्हारी दादी रामायण का पाठ करती हैं। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नामक एक राज्य था। कौशल राज्य की राजधानी थी अयोध्या, जिसके राजा का नाम था दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। दादाजी, ये उत्तराधिकारी क्या होता है? बेटा, उत्तराधिकारी का अर्थ बहुत बड़ा है, जिसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। इस विषय में राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से परामर्श किया, तो ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्ट यज्ञ करने की बात कही। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। तभी अग्निदेव प्रकट होते हैं। प्रणाम अग्निदेव। हे राजन, मैं आपके यज्ञ से प्रसन्न हूँ। जिस इच्छा से आपने यह यज्ञ करवाया है, उसके फल स्वरूप मैं आपको ये अमृत कलश प्रदान करता हूँ। आप इसका सेवन अपनी 3 रानियों को करवा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। राजा 3 रानियों को वह अमृत कलश देते हैं। वह तीनों अमृत का सेवन करती हैं। इस प्रकार राजा का यज्ञ पूर्ण होता है और सब अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। प्रणाम अग्निदेव। यज्ञ के बाद राजा दशरथ के यहाँ पुत्र हुए। कौशल्या से श्री राम, केकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। दादाजी, जब राम जी पैदा हुए थे तो क्या वहाँ के लोगों ने सेलिब्रेट किया था? हाँ, बिल्कुल किया था। कैसे सेलिब्रेट किया था, बताइए ना प्लीज। हाँ बेटा, पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। जब राम जी का जन्म हुआ, हर तरफ खुशी का वातावरण था, तो राजा दशरथ ने अपने महल में उत्सव का आयोजन करवाया। जन्मे अवध में राम,
राम जन्म के पश्चात अयोध्या में चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण था। अयोध्यावासी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की बाल लीलाओं को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। अब श्री राम व समस्त भाई 15 से 16 वर्ष के हो चुके थे। आरंभ में वह शिक्षा, शस्त्र और शास्त्र आदि का ज्ञान ले रहे थे। उन्होंने कई राक्षसों व दैत्यों का भी वध किया और बचपन में ही उन्होंने बड़ी शक्तिशाली राक्षसी ताड़का का भी वध किया। इसके फलस्वरूप एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आते हैं। वह तीनों रानियां राम लक्ष्मण खड़े हैं। तभी वहां सुमंत जी का आना होता है। प्रणाम महाराज, गुरु विश्वामित्र आपसे मिलने आए हैं। अरे सुमंत, उन्हें आदर सहित लेकर आए। जो आज्ञा महाराज। सब उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? सब कुशल से तो है? सब कुशल से है। किंतु क्या मुनिवर? आज्ञा दें, हम क्या कर सकते हैं? मैं आपसे आपके पुत्र राम लक्ष्मण को मेरे साथ जंगल ले जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। जैसी आपकी आज्ञा, किंतु मेरे पुत्रों को ले जाने का कारण जान सकता हूँ? अवश्य। हे राजन, हमारे आश्रम व उसके आसपास राक्षसों और दैत्यों का आतंक है। वह हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। इसी कारण मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आप उचित समझते हैं। पुत्रों, जी पिताश्री। पुत्रों, मुनिवर के साथ प्रस्थान करो और दैत्य व राक्षसों का वध कर अपने शस्त्र शास्त्र को साबित करो। जी पिताश्री। तीनों माताएं विचलित होती हैं। तभी कौशल्या दशरथ जी के पास आती हैं। हे राजन, कृपया मुझे कुछ कहने की अनुमति दें। कहिए रानी, क्या कहना चाहती हैं? राजन, मेरे पुत्र अभी बहुत छोटे हैं। वह कैसे जंगल में दैत्य, राक्षसों व जंगली जानवरों का सामना करेंगे? हे रानी, आप तनिक चिंता ना करें। मुनि विश्वामित्र के संरक्षण में आपके पुत्र सुरक्षित हैं। आप निश्चिंत रहें। राम व लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। आश्रम में सभी यज्ञ कर रहे हैं। तभी वहां श्री राम लक्ष्मण जी का गुरु विश्वामित्र के साथ आगमन होता है। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को पूरे वन का निरीक्षण करवाते हैं। और उन्हें आदेश देकर चले जाते हैं। प्रभु राम और लक्ष्मण जी मुनियों की रक्षा हेतु तत्पर है। आश्रम में सभी यज्ञ कर रहे हैं। तभी वहां राक्षसों का आक्रमण होता है। सभी ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालते हैं।
वहीं रुक जाओ। अरे बालक, हमें रोकता है। आप ऋषियों के यज्ञ में विघ्न क्यों डाल रहे हैं? अब तू रोकेगा हमें। हाँ, हम तुम्हें रोकेंगे। अंतिम बार बोल रहा हूँ, चुपचाप चले जाओ। अरे क्यों बहस कर रहे हो? पहले इनका ही भक्षण करते हैं, इनको ही मार कर खाते हैं। इस प्रकार भयानक युद्ध शुरू होता है। कुछ मर जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। युद्ध के पश्चात मुनियों का राजकुमारों के पास आना होता है। उत्तम, अति उत्तम। हे राम, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, इन सब की एक अति बलशाली गुरु है जिसका नाम ताड़का है। जब तक उसका वध नहीं होगा ये समाप्त नहीं होंगे। प्रभु, आप इनका वध कर हमारी रक्षा करें। गुरु विश्वामित्र वहां आते हैं। सब उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम मुनिवर, कल्याण हो। राम, तुमने इस आश्रम की समस्या तो हल कर दी, किंतु अभी एक कार्य और बाकी है। ताड़का नाम की राक्षसी, जिसका पुत्र अपने मित्रों के साथ सभी के यज्ञ में विघ्न डालता है, सबसे पहले तुम्हें ताड़का का ही वध करना होगा। तो आज्ञा दीजिए मुनिवर, हम ताड़का की खोज में जाते हैं। सही कहा भाई लक्ष्मण, पहले हमें उसका ही वध करना होगा। पुत्रों, वह बहुत भयानक राक्षसी है, जरा संभलना। जी मुनिवर। दोनों राजकुमार ताड़का की खोज में निकलते हैं। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अब श्री राम और लक्ष्मण ताड़का के क्षेत्र में पहुंचते हैं। जंगल में जाते हुए अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राम और लक्ष्मण उसी ओर चल देते हैं और उनका सामना दुष्ट ताड़का से होता है। हे दुष्ट ताड़का, छोड़ दो मुनिवर को। तू कौन है जो मुझे रोक रहा है? मैं दशरथ पुत्र राम, गुरु विश्वामित्र का शिष्य हूँ। छोड़ दो मुनिवर को। ताड़का राम के समीप जाती है। अरे बालक, इतना छोटा होके मुझे ललकार रहा है। तो पहले मैं तुम दोनों का ही भक्षण करूंगी। मेरे साथ युद्ध कर।
वाह, कितने बलशाली थे प्रभु राम व लक्ष्मण जी। कितनी भयानक होगी ना वे राक्षसी ताड़का। जैसे तुम लड़की होकर भी तो किसी। क्या कहना चाह रहे हो? अरे कुछ नहीं। दादाजी ये सब पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ते हैं, तो क्या वे चारों भाई भी आपस में लड़ते थे? बिल्कुल नहीं, वे तो आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। दादी अब हमें आगे की कहानी भी सुनाइए ना। अब वे चारों भाई बड़े हो चुके थे, तो अब श्री राम के विवाह का समय था। विवाह मतलब शादी? अरे वाह! राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर? ये क्या होता है? स्वयंवर का मतलब है विवाह यानी शादी। राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें बहुत से देश के राजाओं को निमंत्रण था, यानी इनविटेशन। लेकिन एक शर्त थी। शर्त? हाँ, सीता जी का विवाह किसी के लिए भी आसान नहीं था। राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो भी कोई शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ देगा, वही सीता से विवाह करेगा। मतलब वह प्रभु शिव का धनुष था और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना कोई आसान काम नहीं था। तो क्या किसी भी राजा से वह शिव धनुष नहीं टूटा और प्रभु राम ने तोड़ दिया? हाँ, तो फिर क्या? प्रभु श्री राम ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ दिया। ये बेटा, श्री राम के विवाह के बाद चारों भाइयों का भी विवाह हुआ और अब सब हंसी खुशी रहने लगे। दादाजी, जब राम जी का विवाह हो गया, वे भी एक साथ सभी भाइयों का, कितना अच्छा वातावरण होगा ना उस वक्त। सच में आराध्या, काश मैं भी शादी में होती। दादाजी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। हाँ, शायद मैं भी वही पूछना चाह रहा हूँ जो तुम पूछना चाह रहे हो। बच्चों, तो फिर समस्या क्या है? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जी, अब जब चारों भाई बड़े हो गए थे, तो जैसा कि नॉर्मल बात है कि जब पापा बूढ़े हो जाएंगे तो मैं काम करूँगा। तो जब राम जी और सारे भाई बड़े हो गए थे, तो राजा दशरथ जी ने राम जी को तो राजा बनाया ही होगा ना। तो क्या उसके बाद राम जी राजा बन गए थे अयोध्या के? बेटा, पहले तो सभी श्री राम को राजा बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन रानी कैकेयी कुछ अलग ही सोच की थी। लेकिन मैंने तो सुना है कि रानी कैकेयी राम जी को भरत जी से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन रानी कैकेयी की एक बड़ी मुंह लगी दासी थी। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने रानी के मन में प्रभु राम के प्रति शंका भर दी कि अगर राम राजा बन गए तो उनके बेटे भरत को कुछ नहीं मिलेगा। दादी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो मैं समझाती हूँ। एक दिन दासी मंथरा रानी कैकेयी के कक्ष में आती है। राजा के निर्णय से सब प्रसन्न थे, किंतु कैकेयी की मुंह लगी दासी मंथरा को यह न भाया। वह रानी कैकेयी के कक्ष में पहुंचती हैं और ऐसा षड्यंत्र रचती हैं कि जिससे अयोध्या में दुख के घनघोर बादल छा गए। अरे रानी, क्या ये सजने का समय है, जबकि पूरे राज्य में दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हैं? अरे पगली, यही तो समय है, कल मेरे राम का राज तिलक है। यही से तो तेरे दुर्भाग्य की शुरुआत होती है। क्या बोल रही है? तो ये बता, राजा ने तेरे भरत को
अयोध्या के बाहर क्यों भेजा, जबकि ऐसा शुभ कार्य होने वाला है? चुप हो जा। राजा जी के बारे में क्या बोल रही है? अरे मेरी भोली रानी, तुम बहुत सीधी हो और वो कौशल्या बहुत चालाक है। उसने ही राजा जी को कहा होगा कि भरत को राज्य के बाहर भेज दो। क्यों? क्योंकि वह जलती है कि तुम राजा की सबसे प्रिय रानी हो और कहीं तुम भरत को राजा। चुप हो जा मंथरा, क्या बोल रही है? किंतु अब मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दे और अपनी चहेती प्यारी मंथरा पर विश्वास कर और जो मैं कहूँ वही कर। ठीक है, तू ही मेरी हितैषी है। जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी प्यारी रानी, चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा काम तो हो गया। केकई अपने आभूषण उतारकर कोप भवन में चली जाती है। तभी वहां राजा दशरथ का आना होता है। क्या हुआ रानी, ये क्या हाल बना रखा है? कल इतना शुभ दिन है और तुमने ये क्या हाल बना के रखा है? आप तो बस राज तिलक की तैयारी करें, मेरी तो कोई चिंता है ही नहीं आपको। ऐसा क्यों बोल रही हो रानी? तुम तो मेरी सबसे प्रिय रानी हो। कहो क्या चाहती हो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? हे राजन, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पहले आप युद्ध में घायल हो गए थे? तब मैंने आपके प्राण बचाए थे और उस समय आपने मुझे 2 वचन दिए थे। हाँ हाँ, मुझे याद है, तभी तो तुम मेरी प्रिय हो। दो क्या, चाहे जितने वर मांग लो। नहीं नहीं, ज्यादा अधिक नहीं, बस आप मुझे वह 2 वचन ही दे दीजिए। हाँ हाँ, बोलो रानी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहला, राम के स्थान पर मेरे भरत का राज तिलक। क्या? नहीं। और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं। अरे कलंकिनी, निर्दयी, मुझसे मेरे प्राण मांग लेती, मैं ये तुझे नहीं दे सकता। तो ठीक है, संसार को कहने दीजिए कि सूर्यवंशी अपने वचनों को पूरा नहीं करते। जाओ, दूर हो जा मेरी आंखों से, दूर हो जा। हे राम। फिर क्या हुआ दादी जी? राम जी को अकेले ही वनवास जाना पड़ा क्या? नहीं बेटा, उनके साथ माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। जब श्री राम वन की ओर चले तो पहले उन्होंने गंगा को पार करना था, जिसके लिए उन्होंने केवट जी से प्रार्थना किया कि उन्हें वह गंगा पार पहुंचाएं, और केवट जी ने उन्हें अपनी नैया से गंगा पार पहुंचा दिया। वहां पर उनकी भेंट बहुत सारे ऋषि मुनियों से हुई। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन चले गए और किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। हाँ, भरत, शत्रुघ्न जी ने भी नहीं रोका।
और उनकी माता जी ने मतलब कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, किसी ने भी नहीं रोका उन्हें। भरत जी ने तो शायद कैकेयी माँ की बातों में आकर कुछ नहीं बोला होगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। भरत जैसा भाई तो ईश्वर सबको दे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने बोला था ना, वैसे सभी भाई आपस में बहुत प्यार करते थे। ये कैसा प्यार हुआ? इसे तो शायद लालच बोलेंगे, लालच। शायद ठीक कह रहे हो, क्योंकि राम जी जाते तभी तो भरत जी राजा बन पाते। अरे बच्चों, भरत जैसा भाई सबको मिलना चाहिए। भरत जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना तो उन्होंने राज्य लिया और ना ही कोई राजपाट। वह तो स्वयं श्री राम को लेने पूरे परिवार के साथ वन में पहुंचे। क्या? तो क्या भरत जी वन में रहने चले गए? तो दादी, फिर इसके आगे की कहानी बताइए ना, क्या हुआ था? बेटा, अब मैं तुम्हें वह किस्सा सुनाती हूँ जिससे आप सभी के मन में भरत जी के लिए आदर और सम्मान होगा। भरत जी अशांत हो गए, व्याकुल हो गए और अपनी सभी माताओं, सेनापति सुमंत, सभी गुरुओं तथा कुछ प्रजाजनों के साथ चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। भैया, भैया! उठो भरत मेरे भाई। भैया, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे ही कारण आपकी ये दशा हुई है। आप मुझे भाई ना कहें, मैं अब इसका अधिकारी नहीं हूँ। भाभी, भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आकर खड़ा हो गया। आपकी यह दशा मुझसे सही नहीं जा रही। नहीं देवर जी, ऐसा ना कहिए। यह सब तो विधि का विधान था। तभी श्री राम लक्ष्मण की ओर जाते हैं और उन्हें भरत का आशीर्वाद लेने को कहते हैं।
प्रणाम भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे ही कारण तुम्हारी और भैया भाभी की ये दशा हुई है। मुझे माफ करो भरत भैया, मेरे मन में तुम्हारे लिए दोष आ गया था, क्रोध आ गया था, मुझे क्षमा करें। तो लक्ष्मण, तुमने मेरे ऊपर तीर क्यों नहीं चलाया? अगर तुम तीर चला देते तो ये मुझ पर बड़ा उपकार होता, यही मेरे पापों का दंड होता। भरत, मेरे भाई, धीरज से काम लो। इतने हताश मत हो। भरत, तुम अयोध्या को छोड़कर वन क्यों चले आए? अयोध्या में माता पिता श्री सब ठीक तो है ना? तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? भैया, पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं, वे परलोक सिधार गए हैं। पिताश्री, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। हाँ लक्ष्मण, हाँ, हम अनाथ हो गए। तभी सुमंत जी राम और लक्ष्मण के समीप जाते हैं। राम, लक्ष्मण, धीरज रखिए। राम, सभी माताएं, गुरुदेव और अयोध्यावासी भी हमारे साथ आए हैं। हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर आए हैं, वैसे वे शीघ्र ही आते होंगे। तभी केवट जी का सभी माताओं और गुरुओं का कुछ अयोध्या वासियों के साथ आना होता है। प्रभु, प्रभु, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। कब से आपसे भेंट करने के लिए व्याकुल था, आज मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। केवट जी और राम जी गले मिलते हैं। हे केवट, मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा, क्योंकि इस वन में भी मैं अपनी माता व भाइयों से मिल पाया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। मैं तो धन्य हो गया आप सबके दर्शन पाकर। लक्ष्मण, सीता, माताएं भी आई हैं, चलो उनके पास चलते हैं। प्रणाम माता। आयुष्मान भव। प्रणाम माता। चिरंजीव भव। राम सभी माताओं को श्वेत वस्त्र में देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। तभी कैकेयी राम के समीप आती है। राम, इन सभी दुखों का कारण मैं ही हूँ राम। नहीं माता, इन दुखों का कारण काल है, धर्म है और विधान है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। नहीं नहीं कैकेयी, तुम अपने आप को क्यों दोषी ठहराती हो? ये सब तो समय का चक्र है। तभी वहां शत्रुघ्न आते हैं। मैं सभी माताओं, गुरु तथा प्रजाजनों से अनुरोध करता हूँ कि आप श्री राम से अयोध्या चलने का आग्रह करें। तभी वहां सब प्रजाजन आते हैं। राम, अयोध्या चलिए, राम, अयोध्या चलिए। हम आपके बिना कैसे रहेंगे श्री राम, आप अयोध्या वापस चलें। तभी वहां सुमित्रा माँ आती हैं। हाँ मेरे पुत्र राम, तुम अयोध्या वापस चलो। यहाँ तुम्हारे अनुज तुम्हारे दिए वचनों को पूरा करेंगे। नहीं नहीं माता। तभी लक्ष्मण राम के समीप आते हैं।
भैया राम, भैया भरत आपको वापस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। कृपया आप उनकी प्रार्थना को स्वीकार करें। परंतु भरत, यह नीति के विरुद्ध है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, और जितना मेरा कर्तव्य है तुम सब भाइयों का भी उतना ही है। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। मैं आज इन्हीं चरणों में अपने प्राण निछावर करता हूँ। यदि आप मेरे साथ नहीं चले तो। भरत, आज मैं तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो वो मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु पिता का कहा गया वचन भी झूठ ना हो। इसलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है कि 14 वर्ष तक तुम ही राज्य को संभालो। भैया, मैं राज्य संभालने योग्य नहीं हूँ। आप बड़े हैं, आपको ही संभालना होगा। मुझसे यह राज्य नहीं संभाला जाएगा। भरत, गुरुदेव, आर्य सुमंत तथा सभी माताएं तुम्हारी सहायता करेंगे और मैं अपने वर्ष पूर्ण करूंगा। भैया, आप बड़े निर्मोही हैं। आपने मेरे प्रेम का कोई मूल्य नहीं आंका। भरत, यदि प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। ठीक है भैया, आपकी आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्ष तक आपका राज्य संभाल लूंगा। आप अपनी पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आपका राज्य आपकी धरोहर है, मैं उस पर कैसे बैठ सकता हूँ। मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और आपका आशीर्वाद लेकर ही राज कार्य करूंगा। भरत, तुम धन्य हो। तीनों लोकों में तुमसे बड़ा धर्मार्थी और कोई नहीं होगा। लक्ष्मण, मेरी पादुकाएं लाओ। इस प्रकार लक्ष्मण पादुकाएं लाते हैं। श्री राम पादुकाओं को अपने पैरों में पहनते हैं। फिर भरत उन पादुकाओं को राज्य चिन्ह के रूप में सर पर रखकर ले जाते हैं। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे राम। अयोध्या चलिए राम। श्री राम, आप वापस चले। हम नहीं रह पाएंगे राम, अयोध्या चलिए। राम, अयोध्या चलिए। आप वापस चलिए श्री राम, हम कैसे रहेंगे। आप वापस चलिए।